सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपनी बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में हैं, तो इस सिलसिले में पुरशिको इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी ने माह रमजान मुबारक का चांद नजर आने की इतला दी है। माह सियाम का पहला रोजा कल से यानी 12 मार्च से होगा। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी सदर मजलिस उलमाए दक्कन का माहाना इजलास बज़ीमन रोयत हिलाल माह रमजान मुबारक 11 मार्च शाम 6 बजे हुसैनी बिल्डिंग मौज़म जाही मार्केट में मुनक्किद हुआ। मौलाना सैयद हसन इब्राहिम हुसैनी क़ादरी सज्जाद पाशा मोतमद सदर मजलिस उलमाए दक्कन की ज़ेर निगरानी मुनक्किद होने वाले इस इजलास में माह रमजान मुबारक का चांद नजर आने की तस्दीक की गई है। माह सियाम का पहला रोजा कल से यानी मंगल से रखा जाएगा। तमाम मुसलमानों को IND टुडे टीम की जानिब से माह रमजान मुबारक की मुबारकबाद दी जाती है। BRS MLC के कविता ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का और वजीर कोंडा सुरेखा की तौहीन पर मुआफी मांगने का मुतालबा किया है। नलगोंडा जिला मरकज में MLC के कविता ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जो कि आला ज़ात से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने यादगिरी गुटा लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का और वजीर कोंडा सुरेखा की तौहीन की है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। कविता ने वजीर आला से फौरन दोनों से मुआफी मांगने का मुतालबा किया। అందరూ సరిసమానంగా కూర్చోవాల్సినటువంటి దేవుడి గుడిలో కూడా భట్టి విక్రమార్క గారిని కింద కూర్చోబెట్టి కొండ సురేఖమ్మని కింద కూర్చోబెట్టి మిగతా అగ్రవర్ణాలకు సంబంధించిన నాయకులందరూ కూడా పైన కూర్చొని మరి ఆశీర్వాదం అందుకున్నారు. నేను నిజంగా కొద్దిగా బాధతోని ఇక్కడ నుంచి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్న గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారిని మీరు క్షమాపణ కోరాలి. ఖచ్చితంగా భట్టి విక్రమార్క గారిని, కొండ సురేఖమ్మ గారిని, వారు రిప్రజెంట్ చేసేటటువంటి SC BC మొత్తం యావత్ సమాజాన్ని కూడా మీరు క్షమాపణ బేషరతుగా క్షమాపణ కోరాలి. ఒకవేళ వారికి మీకు సరిసమానంగా ఆసనాలు లేకపోతే మరి కొంచెం లేచి నిలబడి తీసుకోవచ్చు కదా, అందరు కూడా అనుకుంటే చేయొచ్చు. గౌరవం ఇవ్వాలంటే చేయరాదా? లేదు ఎక్కడంటే అక్కడ కూర్చుంటే మరి పక్కన ఉన్నోడిని, దూరం ఉన్నోడిని నేను చూసుకోను అంటే ఇవాళ ముఖ్యమంత్రిగా మీది పెద్దన్న పాత్ర ఈ రాష్ట్రానికి. తండ్రి స్థానంలో ఉన్నారు మీరు, కానీ అది మర్చిపోయి ప్రతిపక్ష నాయకుడిలాగా మరి తొందరపాటుతోని మీరు చేస్తున్నటువంటి బిహేవియర్ని, మీరు చేస్తున్నటువంటి వైఖరిని ప్రజలంతా కూడా గమనిస్తూ ఉన్నారు. ఇది ఇప్పటిది కాదు, వాళ్ళ మంత్రివర్గంలో మీరు చూడండి, రజకకు ఇప్పటి వరకు ఎవరు కూడా ఒక రజకకు రిప్రజెంటేషన్ లేదు. పెద్ద సామాజిక వర్గమైనటువంటి ముదిరాజుకు రిప్రజెంటేషన్ లేదు, ముస్లిమ్స్కి లేదు, ST లేడు ఇప్పుడు మంత్రి ఒక్కరు కూడా, యాదవ లేదు, కుర్మ లేరు, విశ్వబ్రాహ్మణులకు లేరు, ఒడ్డెర లేరు. ఇట్లా అనేక అంటే పెద్ద పెద్ద సంఖ్యలో ఉన్నటువంటి ఈ సమూహాలను రిప్రజెంట్ చేయడం కానీ వారికి సంబంధించిన అంశాలు చెప్పేటటువంటి వాళ్ళు కానీ లేరు అంటేనే మీ ప్రభుత్వం యొక్క సామాజిక దృక్కోణం ఏంది, మీరు వ్యవహరిస్తున్న శైలి ఏందన్నది చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతూ ఉన్నది. మరి అంతేకాదు, మా తమ్ముడు బాలరాజు గారు చెప్పిన దానికి కొనసాగింపుగా ప్రభుత్వ సలహాదారులను పెట్టుకున్నారు. ఇవాళ సలహాదారుల్లో అందరూ అగ్రవర్ణాల వాళ్ళే, ఒక BC లేరు, ఒక SC కూడా లేరు. అంటే అసలు BCలలో మేధావులు లేరు, SCలలో మేధావులు లేరు, ప్రభుత్వానికి సలహాలు ఇచ్చేది. మళ్ళీ ఇదే ముఖ్యమంత్రి గారు ఆనాడు KCR గారు ఒక చాలా మంది మేధావులను మనకు తెలంగాణ ఉద్యమ సందర్భంలో సహాయం చేసినటువంటి వాళ్ళను, రిటైర్డ్ IASలను సలహాదారులుగా పెట్టుకుంటే ఈయననే కోర్టుకు పోయి కేసేసి సలహాదారులు ఉండొద్దని రద్దు చేపించినటువంటి వ్యక్తి ఈయన. ఇప్పుడు మాత్రం రాజకీయంగా ముగ్గురికి అవకాశం ఇచ్చిండ్రు, కానీ అందులో ఒక SC సలహాదారులు లేడు, ఒక BC సలహాదారులు లేరు.
तेलंगाना के वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने सिकंदराबाद के न्यू बोईगुड़ा में नेशनल मिडवाइफरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह किया। रियासती महकमा सेहत व खानदानी बहबूद के ज़ेर एहतमाम न्यू बोईगुड़ा सिकंदराबाद में 1 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से नेशनल मिडवाइफरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कायम किया गया है। रियासती वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने इमारत का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद कहा कि मिडवाइफरी का तरबियत याफ्ता अमला 83% जचगी और नवजायदा बच्चों की अमवात को कम करने के लिए काम करेगा। उन्होंने तरबियत याफ्ता अमले पर देही इलाकों में खवातीन को दरपेश सेहत की देखभाल के चैलेंजेस से निमटने के लिए काम करने पर जोर दिया। दरियासना वजीर सेहत ने 18 माह की पेशा वाराना तरबियत मुकम्मल करने वाले उम्मीदवारों को असनादात भी हवाले किए और कहा कि नर्सिंग डायरेक्टरेट के क़याम के लिए वो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से नुमाइंदगी करेंगे। तेलंगाना हज कमेटी के नौमुंतखब चेयरमैन खुसरो पाशा अफजल बियाबानी ने पीर को अपने ओहदे का जायजा हासिल किया। रियासती हुकूमत के जियो नंबर 12 के जरिए हज कमेटी की असर नौ तश्कील के बाद मुतफ़िक़ा तौर पर हज कमेटी सदर नशीन के तौर पर मौलाना सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा सज्जादा नशीन दरगाह खाजीपेट का इंतखाब अमल में आया था। खुसरो पाशा अफजल बियाबानी ने तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के दफ्तर में अपने ओहदे का जायजा हासिल किया। इस मौके पर राज्यसभा MP अनिल कुमार यादव, कांग्रेस लीडर फहीम कुरैशी, उलमा और मशाइखीन के अलावा दीगर मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी के कायदीन, उनके खैर ख्वाहों और हज कमेटी के दीगर अराकीन ने उन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दरियासना तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी, तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन उबैदुल्लाह कोतवाल, उर्दू एकेडमी के चेयरमैन ताहिर बिन हमदान और हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लियाकत हुसैन, हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने भी इस मौके पर शिरकत करते हुए हज कमेटी के चेयरमैन खुसरो पाशा बियाबानी को मुबारकबाद दी और अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार माने जीवन रेड्डी ने महबूब नगर बल्दियाती इदारों के MLC ओहदे के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। महबूब नगर बल्दियाती इदारों के इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की जानिब से माने जीवन रेड्डी को उम्मीदवार नामजद किया गया है। उन्होंने पीर को वजीर जुपली कृष्णा राव और प्लानिंग कमीशन के नायब सदर जी चन्ना रेड्डी की मौजूदगी में रिटर्निंग ऑफिस में कलेक्टर जी रवि नायक को पर्चा नामजदगी हवाले किया। इस मौके पर MLA मधुसूदन रेड्डी, वाई श्रीनिवास रेड्डी, MLC के दामोदर रेड्डी के अलावा MLA मेघा रेड्डी, राजेश रेड्डी, वंशी कृष्णा शंकर, गदवाल जिला परिषद चेयरपर्सन श्रीता, कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लू रवि, CWC के स्पेशल इनवाइटी वंशी चंद्र रेड्डी, अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के चेयरमैन उबैदुल्लाह कोतवाल और कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायदीन मौजूद थे। रमज़ान के मुक़द्दस महीने के आगाज़ से पहले ही हैदराबाद के तारीखी चार मीनार के करीब बाजार में रौनक देखी जा रही है। रमज़ान मुबारक का महीना शुरू होने वाला है। शहर हैदराबाद में रमज़ान के आगाज़ से पहले ही खूब रौनकें देखने को मिल रही हैं। ख़ास तौर पर हैदराबाद के पुराने शहर में तारीखी चार मीनार के आसपास खरीदारों की गहमा गहमी है। दुकानदार, छोटे ताजरीन भी रमज़ान में खरीदारों का इस्तकबाल करने की तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं। रमज़ान शुरू हो जाने के बाद खरीदारों की तादाद में इजाफा होने का इम्कान है। आपको बता दें कि रमज़ान के महीने में शहर के तिजारती मराकज़ रात भर खुले रखने की इजाज़त दी जाएगी। ज़राए से पता चला है कि लेबर डिपार्टमेंट की जानिब से दुकानदारों और दीगर कारोबारी इदारों को रात में खुले रहने की इजाज़त दी जाएगी। मुताल्लिक़ा महकमे को इस सिलसिले में नुमाइंदगी पेश करते हुए होटलों, दुकानात व दीगर को खुला रखने की इजाज़त मांगी गई थी। यहाँ इस बात का तस्करा बेजाना होगा कि शहर में कई बाजार हैं। कई इलाकों के फंक्शन हॉल्स में रमज़ान एक्सपो भी मुनक़िद किए जाते हैं, लेकिन
आवाम की एक बड़ी तादाद शहर के दूर दराज वाले इलाकों में रहने के बावजूद भी रमजान में खरीदारी के लिए तारीखी चार मीनार का ही रुख करना पसंद करती हैं, क्योंकि चार मीनार के आसपास उन्हें कपड़े, सोने चांदी के जेवरात, फुटवेयर, घर की सजावटी अशिया, बर्तन व दीगर चीजें बआसानी और वाजबी दामों पर दस्तयाब हो जाती हैं। इतना ही नहीं, खरीदारी के साथ साथ वो लजीज खानों, ताज़ा मशरूबात और आइसक्रीम वगैरह सभी लुत्फ अंदोज हो सकती हैं। खनमकुंडा जिले में आपाशी के लिए पानी न मिलने से परेशान किसानों ने पानी मुहैया करवाने का मुतालबा करते हुए अम्बाला जंक्शन पर धरना मुनज़्ज़म किया। जराये ने बताया कि खनमकुंडा जिले के कमलापुर मंडल के अम्बाला, श्री रामुलापल्ले, मदनापेट, गुतीपरती गांव के किसान पानी न मिलने से परेशान हैं, क्योंकि उनकी फसलें सूख रही हैं। वो फसलों की हिफाजत के लिए BPM 24 SRSP नहर से पानी छोड़ने का मुतालबा कर रहे हैं। पीर को अम्बाला जंक्शन पर किसानों ने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और बतौर एहतजाज सड़क पर पकवान भी किया गया, जिसने तेलंगाना तहरीक की यादें ताज़ा कर दी। किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो उन्हें आपाशी के लिए पानी मुहैया करवाने के इक़दाम को यकीनी बनाए, ताकि उनकी फसलें ज़ाय न हो। अम्बाला जंक्शन पर किसानों के एहतजाज के सबब पुलिस की भारी जमीयत को तैनात देखा गया। वाज़ेह है कि सिर्फ खनमकुंडा जिला ही नहीं, बल्कि रियासत के कई अजला ऐसे हैं जहां पर किसान फसलें सूख जाने से परेशान हैं। मदरसतुत तक़वा ली तहफ़ीज़ुल कुरान करीम का सालाना जलसा तकमील हिफ्ज़ कुरान व तक़सीम असनाद का इनेक़ाद अमल में आया। मदरसतुत तक़वा ली तहफ़ीज़ कुरान करीम वाक़े IS कॉलोनी टोली चौकी की जानिब से सालाना जलसा तकमील हिफ्ज़ कुरान व तक़सीम असनाद मस्जिद तक़वा अल हदीस में मुनक़्क़िद किया गया। अमीर जमीयत अहले हदीस सदर हैदराबाद व सिकंदराबाद शेख शफीक आलम जामे हिफ्ज़ुल्लाह और शेख सुलेमान अल वदूद हिफ्ज़ुल्लाह रियाद सऊदी अरब ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मेहमानान के हाथों मुख्तलिफ मुकाबलों में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने वाले 22 तुलबा को इनामात से नवाजा गया और कुरान मजीद हिफ्ज़ करने वाले 3 हुफ़ाज़ को भी तहनीत पेश की गई। शेख इम्तियाज आलम जामे हिफ्ज़ुल्लाह ने जलसे से खिताब किया। शेख समीउल्लाह मदनी हिफ्ज़ुल्लाह इमाम व खतीब मस्जिद तक़वा ने जलसे के निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। इस मौके पर मीडिया कोऑर्डिनेटर सूफी व दीगर मौजूद थे। गजात किला मोहम्मद नगर के नायबीन पर मुश्तमिल एक वफ्द ने तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी से मुलाकात की। सिर्फ 2 काजियों की जानिब से ही कारकर्दगी अंजाम देने की अफवाहें फैलाने के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त की। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी का तखर्रुर अमल में आया है। गजात किला मोहम्मद नगर के नायबीन पर मुश्तमिल एक वफ्द ने आज वक्फ बोर्ड पहुंचकर सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी को चेयरमैन वक्फ बोर्ड का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। दरियासना चेयरमैन वक्फ बोर्ड को एक याददाश्त भी हवाले की गई और गैर ज़रूरी तौर पर किला मोहम्मद नगर के काजी मोहम्मद यूसुफुद्दीन के इंतकाल के बाद क़ज़ात की जिम्मेदारी सिर्फ उनके 2 फर्जंदान को सौंपे जाने की अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त की गई। नायब काजी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि दीगर नायबीन भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अवामुन्नास से गैर ज़रूरी अफवाहों पर यकीन न करने की भी ख्वाहिश की गई है। अल्लाह बरकात। हम
पूरे नायबीन खजात खिले मोहम्मद नगर गोलकुंडा से ताल्लुक़ रखते हैं। पूरे नायबीन यहाँ पर चेयरमैन साहब की गुलदोशी के लिए आए थे। चेयरमैन साहब से मुलाकात हुई। उनको एक हमारी तरफ से एक लेटर दिया गया जिसमें ज़िक्र है कि गैर ज़रूरी तौर पर जो गलत बावर किया जा रहा है कि खिले मोहम्मद नगर के जो क़ाज़ी मोहम्मद यूसुफ़ुद्दीन साहब के इंतकाल के बाद खजात सिर्फ उनके 2 बच्चों को ऑर्डर मिला, सिर्फ 2 बच्चे काम कर सकते, ये बिल्कुल गलत बात है। अल्हम्दुलिल्लाह कौन जो है अफवाह उठा ये गैर ज़रूरी सामने जो है दूसरे एडिशनल क़ाज़ी साहबान ये गलत बावर लोगों को करा रहे हैं कि सिर्फ 2 क़ाज़ी साहब काम कर सकते हैं, उमैरुद्दीन और उज़ैरुद्दीन, बल्कि ये उमैर मोहम्मद क़मरुद्दीन हुसैन खजात खिले मोहम्मद नगर के सदर क़ाज़ी हैं और नायब सदर क़ाज़ी उज़ैर मोहम्मद इस्लाहुद्दीन हुसैन हैं। बाकी सारे नायबीन खुद कोर्ट के ऑर्डर में भी यही है कि जो नजमुद्दीन साहब और यूसुफ़ुद्दीन साहब के जो नायबीन थे वैसे ही वो नायबीन उमैरुद्दीन और उज़ैरुद्दीन के साथ वैसे ही काम करेंगे। उसमें किसी किस्म का ये ऑर्डर है ही नहीं कि भाई सिर्फ 2 उमैरुद्दीन और उज़ैरुद्दीन काम करेंगे। बिल्कुल गलत लोगों को बावर किया जा रहा है। बल्कि और मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह भी हम निकाह तकमील करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इश्यू हो रहा और पूरे नायबीन अपनी जगह पूरे क़ारी निकाहों के साथ बाज़ाब्तगी से काम कर रहे हैं। गैर ज़रूरी लोगों की बातों में मत आएँ और हम ये बात चेयरमैन साहब के सामने भी पेश करे हैं और दूसरे जो गवर्नमेंट की तरफ से जो मज़ीद अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं उस बात पर भी हम उसका भी हम जिक्र करे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से जो इशू हो रहा है एक कलेक्टर की रिपोर्ट पे ऑर्डर इशू हो जा रहा, जबकि कलेक्टर मालूम करना चाहिए कि भाई ये एरिया में क़ाज़ात है, क़ाज़ी काम कर रहे हैं या नहीं, पहले ये दरियाफ्त करना चाहिए। कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रेड हिल्स डिवीजन कॉर्पोरेटर आरिफ रिजवान ने रमजान मुबारक के इंतजामात का जायजा लेने के लिए शाही मस्जिद बाग़-ए-आमा का दौरा किया। खलीजी ममालिक में माह रमजान का आगाज हो गया है और चांद नजर आने पर हिंदुस्तान में भी कल से यानी 12 मार्च से माह रमजान का आगाज हो जाएगा। शहर की मसाजिद में 5 वक्ता नमाजों और तरावी के लिए इंतजाम किए जा चुके हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और नामपल्ली रुकने असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन की हिदायत पर रेड हिल्स डिवीजन नुमाइंदा कॉर्पोरेटर आरिफ रिजवान ने शाही मस्जिद बाग़-ए-आमा का दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर महकमा अक़लियती बहबूद के अफसरान इलियास अहमद, मस्जिद कमेटी के अराकीन व दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। आलमी कारवान अदब के ज़ेर एहतमाम मरहूम शायर साबिर कागज़ नगरी के साने इर्तिहाल पर एक ताज़ियती इजलास बज़रिए ऑनलाइन मुनक़्क़िद किया गया। आलमी कारवान अदब ने ऑनलाइन जूम पर एक ताज़ियती इजलास बराए खुशफ़िकर मुतरन्नुम शायर साबिर कागज़ नगरी मरहूम मुनक़्क़िद किया। इजलास की सदारत क़तर में मुक़ीम मुमताज़ तारिख को शायर मुज़फ़्फ़र हुसैन, नायब सदर हल्क़ा अदब इस्लामी क़तर व चेयरमैन आलमी कारवान अदब ने की। मुबस्सिर ईमान सेक्रेटरी हल्क़ा अदब इस्लामी क़तर व मोतमद उमूमी आलमी कारवान अदब ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी हामिद मोहम्मद खान, साबिक़ अमीर हल्क़ा जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना ने शिरकत की और मेहमान अज़ाज़ी के तौर पर तनवीर ताज फर्जिंद साबिर कागज़ नगरी शरीक रहे। इसके अलावा दीगर मेहमानान शोएबुल हक़ तालिब, रियासती सदर इदारे अदब इस्लामी तेलंगाना रियाज तन्हा निज़ामाबाद वो दीगर ने भी शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ, जिसे मरहूम साबिर कागज़ नगरी के नबीरज़ादा रूहानुद्दीन बाज़ल ने पेश किया। खलीलुद्दीन ने साबिर की मनाजात पेश की और बहन शाजिया आज़मैन ने मुतरन्नुम अंदाज में नात शरीफ का नजराना पेश किया। मोहम्मद मुदब्बिरुद्दीन की जानिब से
मरहूम साबिर कागज नगरी का तारुफ पेश किया गया। बादशाह शुरका ने मंजूम ताजियती कलाम और इजहार ख्याल पेश किया। ताजियती इजलास मरहूम के मुहासिन बयान करने, उनकी खिदमात के लिए कलमात तहसीन अदा करने और दुआए मग़फ़िरत करने के लिए मुनक़िद किया गया था। जूम पर मुनक़िद ऑनलाइन इजलास में शुरका की कसीर तादाद मौजूद रही। सामईन अश्कबार नजर आए। तनवीर ताज की दुआ और मुबस्सिर ईमान के इजहार तशक्कुर के साथ ताज़ियती इजलास खत्म हुआ। TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद की जानिब से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुजस्सिमे को खिराज अकीदत पेश किया गया। KR राजकुमार सदर TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद ने पोचम्मा बस्ती में दस्तूर साज बाबा साहेब अंबेडकर के मुजस्सिमे पर फूल चढ़ाए और उन्हें भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर रविंदर, वेंकट, बालाजी गोस्वामी, पटेल, गिरी, शिवा आनंद, महेश गौड़, श्रीनिवास, पुरुषोत्तम, मलेश के अलावा दीगर मौजूद थे। सीरियल अदाकारा अडाला ऐश्वर्या के शौहर शिवा कुमार ने अदाकारा की जानिब से उसे डरा धमकाकर 25 लाख रुपए मौसूल करने पर शिकायत दर्ज करवाई है। अडाला ऐश्वर्या सीरियल अदाकारा होने के साथ साथ फिल्मी हीरोइन भी है। उन्होंने कई मशहूर सीरियल्स में काम किया है। ऐश्वर्या का खानदानी तनाजा मंजर-ए-आम पर आया है। बताया गया है कि अक्टूबर 2023 में उन्होंने एक मैट्रिमोनी साइट के जरिए श्याम कुमार नामी शख्स से शादी की थी। श्याम कुमार ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए अदाकारा की जानिब से उसे हरासा करने और डरा धमकाकर 25 लाख रुपए वसूल करने का इंकशाफ किया है। शिवा कुमार की जानिब से इस सिलसिले में पुलिस में एक शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। दूसरी जानिब अदाकारा का इल्जाम है कि उसका शौहर उसके हरासा करता है। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। रियासत उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में बारातियों को ले जाने वाली एक बस बिजली के तारों से टकराने के बाद शोलापोश हो गई। 5 अफराद हलाक और मुतादिद शदीद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक ये वाकया मरवा थाना इलाके में महर जाने वाली सड़क पर पेश आया। बताया गया है कि बस कच्ची सड़क से मरवा के महाहर धाम कोमाओं के कोपा से शादी की बारात लेकर आ रही थी कि अचानक 11,000 वोल्ट के बिजली का तार बस से टकरा गया, जिसके बाद बस को भयानक आग लग गई। बस को आग लगने की वजह से लोग अपनी जान बचाने के लिए बस के बाहर भी कूद नहीं सके। ताज़ा तरीन इतलात मिलने तक 5 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हुए हैं और हलाकतों में इजाफे का खदशा है। शहर हैदराबाद में KPHB पुलिस हुदूद की एक होटल में मुफ्त टिफिन देने से इनकार पर एक शराबी ने होटल के मालिक पर हेलमेट और पानी की बोतल से हमला कर दिया। तफसीलात के मुताबिक राजू यादव नामी शख्स ने, जो नशे में था, KPHB कॉलोनी की एक होटल पहुंचा और उस वक्त हंगामा खड़ा कर दिया जब उसे मुफ्त टिफिन नहीं दिया गया। उसने होटल मालिक पर हेलमेट और पानी की बोतल से हमला किया। इसकी इत्तला मिलने पर कांस्टेबल शशि मौके पर पहुंचे। बताया गया है कि जब उन्होंने शराबी शख्स को रोकने की कोशिश की तो बरहम शख्स ने कांस्टेबल पर भी मुक्के बरसाए। इस अजीब वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। ఆరు నెలల క్రితం వాళ్ళ తమ్ముడు కూడా వచ్చిండు, నేను చంపేస్తా అన్నాడు రాజా.
ఆ రోజు కూడా నేను నీకు అంటే నీకు నాకేంద్ర పోయింది నన్ను ఎందుకు చంపుతావు అన్న. ఈ పక్కన రాయల్ డయాగ్నోస్టిక్ చెప్పి పక్కన అరుణ్ ఇద్దరు ఆర్ఎఫ్ డయాగ్నోస్టిక్ అని కావాలని వీళ్ళే పంపించిన నా అనుమానం. ఎందుకంటే గతంలో కూడా నన్ను చంపాలని అప్పుడు పాజం సీను నాసర్ బాయ్ సెకిల్ బాయ్ బతుకున్నప్పుడు ఎత్తుకపోయి నా పని నువ్వు డ్రాయర్ ఇప్పి చంపుతా అన్నాడు. అయినా అది ఎవరు చెప్పుకుందామంటే చంపేస్తా అన్నారు. ఇప్పుడు వచ్చి చంపడానికి వస్తే నేను సరే చంపుతా నేను ఎంత తిరిగి మాట్లాడుతున్నా వచ్చి నడుస్తూనే ఉండు వారి ఇష్టం ఉన్నట్టు. ऑस्ट्रेलिया में मुकीम एक हैदराबादी खातून की नाश कचरे के डब्बे से बरामद हुई। 36 साल श्वेता मधागिनी ऑस्ट्रेलिया में अपने शौहर और बेटे के साथ मुकीम थी। जराये से पता चला है कि श्वेता मधागिनी की नाश उसकी रिहायशगाह से 84 किलोमीटर दूर सड़क के किनारे लगे एक कचरे के डब्बे में मिली थी। गुमनाम फोन कॉल मौसूल होने पर पुलिस ने वहां पहुंचकर नाश बरामद की। खातून के कत्ल के पीछे उसके शौहर का हाथ होने का शुबा है, क्योंकि वो इस वाक़े के बाद अपने बेटे को लेकर हैदराबाद पहुंचा और उस बेटे को श्वेता के वालिदैन के हवाले कर दिया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।